Good morning, my dear students. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. So, this is your book. Open your book and make sure that you have your pencil in your hand so you can write the meanings of difficult words, right? So, before this chapter, we have explained the first chapter, which was Nicobobinus, right? And I have also sent you a written work. Kindly note that work and copy that work in your own copies, neat copies with proper lines, margin lines, dates, right? Write your a question with marker and answer with pen. Sorry. Hope you understood, right? But this is your second chapter, Unit 2, page number 15. Now open your books. We will start our second chapter, that is the ransom of Red Chief. What? The ransom of Red Chief. बच्चों ransom means तावान. जब आप word ransom कोई पढ़ लेना तो आपका आइडिया क्लियर हो जाता है. तावान तावान हम वहीं पे देते हैं जहाँ पर we talk about kidnapping, thieves and all. Now let's read the chapter. And it looks very interesting and lengthy too. Okay, yep, it is. It's okay, we will do it inshallah, not to be worried. These are the some words meaning. We will do it with time by time. जहाँ पर हमें word मिलता है हम यहाँ पर आके help लेंगे. Another thing I want to discuss with you, please buy dictionaries for yourselves. So read the chapter, and if you think there are some difficult word, write the meaning with a pencil. See, I have also write these words. Fine. Okay, let's start the chapter. The story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. ये स्टोरी है किडनैपर्स के बारे में, ठीक है. जितनी उन्होंने मांगा था उससे ज़्यादा उनको मिल जाता है. How? I don't know. Let's read the chapter. We were down south in Alabama, Bill Distrol and myself, when the kidnapping idea struck us. Okay? कहते हैं मैं और बिल डिस्ट्रॉल एंड दिस पर्सन बोथ वर फ्रेंड्स, राइट. तो कहते हैं हमने किडनैपिंग आइडिया तब हमारे माइंड में आया जब हम किधर होते थे, अलबामा में थे, ठीक है. बिल एंड मी हैड $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय some land in western Illinois. We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. कहता है कि मेरे पास और बिल के पास $600 थे और हमें $2,000 और चाहिए थे एक गांव साइड पे अपने लिए घर लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि गांव साइड पे मोहब्बत ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पर रहेंगे, ठीक है. तो ये करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे. अब वो whenever you need something, you need money, you have to do job, struggle, so you earn money. This is the wrong way to kidnap someone, by kidnapping, by bargaining money, right? But it's a story, so let's read the story. But this is my advice, do not take shortcuts, okay? If you need something, struggle for that. Okay, we selected for our victim the only child of prominent citizen named Ebenezer Dorist. Mr. Dorist was known for his wealth, which he made from lending mortgages, ठीक है, and making foreclosures, ठीक है. वो कहते हैं कि हमने जिस बंदे को किडनैप करने के लिए सोचा वो वहाँ का एक नामी गिरामी बंदा मिस्टर डॉरिस्ट के बारे में हमने सोचा, ठीक है. वो अपने पैसों के लिए बहुत जो थे फेमस थे. वो क्या करते थे, घर देते, मॉर्टगेजेस रहन के लिए, लैंडिंग देते थे, जगह देते थे, बेचते थे, ठीक है. और फिर क्या कहते थे, उससे क्या करते थे, पेशगोईज, उससे डिफरेंट काम करते थे. The kid was a boy of 10
with freckles and bright red hairs. Now he is talking about which boy? Here we talked about Mr. Dorist, but now they are talking about a boy जिसकी उम्र 10 साल थी. Freckles mean, if you saw the English peoples, right, they have a kind of brown spots on their faces. उनके मुंह पे जो दाग होते हैं ना, उसको हम freckles बोलते हैं. And bright, बड़े मज़े के उसके reddish से बाल थे. Bill and me figured that Benzer would agree to pay a ransom of $2,000, but wait till I tell you what happened. वो उसे कहता है कि बेंजर ऐसा बंदा है जो कि हमें पैसे दे सकता है, ठीक है, रैंसम तावान देगा $2,000, क्योंकि अमीर होता है ना. बट अब ये बोलता है कि रुक जाएं. क्या मैंने आपको बताया कि हुआ क्या है किडनैपिंग. नाउ द स्टोरी बिगिंस. अब हमें पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे किडनैपिंग होती है एंड ऑल. About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountains. On the rear slope of this mountain was a cave. There we stored provisions. अब 2 miles दूर सुमित में एक ट्री होता था, ठीक है, जो कि माउंटेन्स में होता था. उधर ही एक स्लोप पे क्या होती थी, केव, एक गार टाइप था. यानी माउंटेन्स में आपने देखा होगा ना, जो इफ़ यू वॉच द पिंक पैंथर कार्टून, ठीक है, उसमें एक माउंटेन दिखाते हैं और उस माउंटेन में क्या होता है, अंदर से एक जगह होती है. लॉट्स ऑफ मूवीज़ हैव ऑल्सो द माउंटेन्स इन विच दे हैव अ केव वेयर द monkeys लिव, लायन स्लीप्स एट नाइट एंड ऑल, ठीक है. तो वहाँ पर एक ऐसी जगह थी, वो अपना खाना वहाँ पर स्टोर करते थे, रखते थे. One evening we drove in a buggy past old Dorist house, ठीक है. अच्छा, कहते हैं एक शाम को हमने अपनी बगी ड्रूव, अपनी जो सवारी होती है वो रोकी. बगी, व्हाट इज़ बगी? बगी आप देखते हैं ना, घोड़ा जो होता है, ठीक है, घोड़े के पीछे जो लगा हुआ होता है, लोगों को लेके जाते हैं, जिस पे लोग बैठते हैं, उसको बगी बोलते हैं. क्योंकि ओल्ड टाइम था तो इतने व्हीकल्स नहीं थे, कार्स, मोटर बाइक्स, ठीक है, दीज वर नॉट अवेलेबल और मोस्ट कॉमन, सो दे यूज्ड बगी. तो उन्हें डॉरिस्ट हाउस के साथ वो रोका, ठीक है. बच्चा जो था, द किड वॉज इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में खेल रहा था, ठीक है, रॉक्स फेंक रहा था. किस पे? किटन, ऑपोजिट साइड ऑफ फीन्स. ओके, दैट इज़ फीन्स. बच्चे, फीन्स इज़ समथिंग, अगर आप देखिए एक बाग है, ठीक है, उस बाग में कंडा तारे वगैरह लगी होती हैं या कुछ छोटी सी दीवार बनी होती है वुडन, उसको फीन्स बोलते हैं. अंडरस्टूड? हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी? मिस्टर बिल उससे कहता है उस बच्चे को, क्या तुम्हें कुछ टॉफ़ीज़ चाहिए? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक्स एट बिल्स हेड. तो बच्चा उसके सर पे, जो बिल्स के सर पे भी एक ब्रिक, एक पत्थर एक फेंक देता है, ठीक है. दैट बॉय पुट अप अ फाइट बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रूव अप टू द केव. लड़का तो बच्चा तो अब लड़ने वाला था. अब इवेंचुअली खुशकिस्मती से क्या हुआ कि हमने उसको उठा के और बगी में डाल दिया, ठीक है, और उसको केव गार तक ले गए. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. फिर क्या होता है कि शाम तक वो बगी को वापस गांव ले गया था. Bill was examining and treating the scratches and bruises on his face and legs. Bill देख रहा था अपनी चोटों को, bruises, चोट, scratches जो मार्क्स पड़े थे उसके, ठीक है, उसके फेस पे और उसके लेग्स पे. There was a fire burning in the cave. The boy was sitting by it. ठीक है, अब देखिए, this is a गार. देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, माउंटेन टाइप, सी माउंटेन टाइप, ठीक है, और इस माउंटेन में ये होल्ड है और इसके अंदर रहते थे. ओके, दिस पर्सन इज़ अ बिल, राइट. ये वो बॉय है जिसको उन्होंने किडनैप कर दिया है, और दिस इज़ द नरेटर. नरेटर मीन्स जो आपको स्टोरी बता रहा है. But with 2 burst tail's feathers stuck in his red hair, he points a stick at me and says. अब देखिए, वो बच्चा कहता है कि आग के सामने बैठा हुआ है और ये देखें फेदर्स उसने लगाए हुए हैं अपने सर पे, और मेरी तरफ स्टिक करके वो कहता है, हे cursed pale face. cursed मतलब लानत, पेल फेस जब आपका फेस बिल्कुल जर्द हो जाता है. डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ कैंप? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रेड चीफ के कैंप में जाओ? इज ऑल राइट नाउ. वो ठीक बोला था, सेज बिल कह रहा था. वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, ठीक है, हम रेड इंडियन ही खेल रहे हैं, ठीक
ठीक है। रेड इंडियन और रेड चीफ मतलब एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर इंडियंस होते थे। आई एम ओल्ड हैंक, मैं ओल्ड हैंक हूँ। रेड शेफ्स कैप्टिव, नाउ कैप्टिव मीन्स कैदी, ठीक है। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट द डे ब्रेक, आउच दैट किड कैन किक हार्ड, ठीक है। उसे कहते हैं कि मैं रेड चीफ हूँगा और अब तुम रोज़ बरोज़ यहाँ पर रहोगे और हम बात करेंगे, आउच दैट किड किक हार्ड। अब उस बच्चे ने उसको मारा और वो कह रहे थे कि बच्चा काफ़ी तेज़ी से मारता है। नाउ रीड दिस, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आती यू कैन टेल मी एनी टाइम, you can complain or whatever you want. Fine, take care, Allah Hafiz, have a good day.